we are discussing about the concrete mix design Indian standard method. Okay, we have seen various methods are there. I have told you last time the first step. Okay, now whatever steps we will be discussing one by one, they are very simple. Within the 45 minutes you will be expert in concrete mix design, that I have the confidence. Okay, next 45 minutes. So the first and very important step, friend, is the data to be supplied by the site engineer to the concrete mix designer. Okay, who will be in the laboratory. I have told you three persons are involved in this process. The first is structural designer, who gives this strength required by the concrete for the component of the structure. Second is the site engineer, who has to got that concrete in such a way to get the strength design proposed by the structural engineer. And the third and the very important person is the concrete mix designer, who sits in the laboratory or who has got the separate laboratory, maybe at site or maybe adjacent to the site or outside the site. So to that person, concrete mix designer, the site engineer have to submit this data so as to get the concrete mix designed or concrete mix proportioned for the required strength, durability, and the workability. Okay, he has to mention the grade of the concrete, that is the strength, that is M10, M20, M30, M40, M40, 60, etc. M stands for mix, and the numerical value stands for the megapascal or Newton per mm square, the characteristic compressive strength. Okay, it's very important. Again and again, I am repeating it. Characteristic compressive strength is the 28 days after curing 28 days to the concrete cube of 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter. Whatever crushing strength we get, that is called as the characteristic compressive strength. So that strength is needed. Grade designation, then the type of the cement, whether OPC, PPC, GGBS, rapid hardening, etc. Various types of the cement that he has to mention, as well as the grade of the cement. Maximum size of the aggregate at site proposed to be used. कौन से एग्रीगेट मैक्सिमम साइज का आप यूज करने वाले हैं वो मेंशन करना पड़ना है यहाँ पे. मिनिमम सीमेंट कंटेंट, कम से कम सीमेंट आप कौन सा कितना यूज करने वाले हैं, ये साइट के ऊपर डिपेंड रहता है, वो मेंशन करना है ताकि वो कंक्रीट मिक्स डिजाइनर इससे कम सीमेंट नहीं डालेगा, वो बोलेगा, आता भी होगा कैलकुलेशन से तो भी. मिनिमम वाटर सीमेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, this will again depend on the workability needed. Workability either in slump or in compacting factor or the VB VB time or maybe floatable that is flow percentage. Workability he will mention. एक्सपोजर कंडीशन क्या है मैंने आपको बताया था, मैं टेबल अभी आपको बाद में बताया दिखाने वाला हूँ. टेबल नंबर 4 and 5 ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड 456. आपके पास में यदि सॉफ्ट कॉपी इसकी भी नहीं होगी तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा. 456 2000 की सॉफ्ट कॉपी आई विल अपलोड टू द गूगल क्लास. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द 10/2/62 2009 and I have the guarantee that maximum of you at least must have gone through that IS, though you cannot go into the detail without understanding. Then the maximum temperature of the concrete at the time of placing. Okay. Method of the transporting and placing of the concrete. Early stress strength required. एखादे बार 3 दिन की स्ट्रेंथ, 7 दिन की स्ट्रेंथ कितनी चाहिए कंक्रीट की, वो आपको इसमें मेंशन करना है ताकि आपको फॉर्म वर्क वगैरह हटाना है तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं. टाइप ऑफ एग्रीगेट मींस क्रश्ड एग्रीगेट है, कोनिकल है कि स्पेरिकल है कि और कौन से है और कौन सा सोर्स है, ग्रेनाइट है कि मार्बल है. मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट वो भी आपको मेंशन करना है, जैसे मिनिमम सीमेंट कंटेंट है तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, और एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं तो कौन सा एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं.
और मैंने जैसे बताया आपको, ये सब चीजें सबमिट, पेपर पे सबमिट करते वक्त ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इन प्रॉपर क्वांटिटी, जैसे कि सीमेंट कम से कम 1 बैग सीमेंट, एग्रीगेट कम से कम 100 किलोग्राम एग्रीगेट, रेती कम से कम 50 किलोग्राम रेती, पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एडमिक्सचर कम से कम 1 2 3 लीटर एडमिक्सचर। ये चीजें आपको ये डाटा शीट के साथ में ये कंक्रीट मिक्स डिजाइनर जो है उसको देना है। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 is the preparation of the data and submission of the material. स्टेप नंबर 1, ठीक है, एग्जाम में स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ता है, तो आपके नोटबुक में भी आप लिखते जाइए स्टेप नंबर 1। वैसे अपन स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स में भी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन और सबमिशन ऑफ द डाटा along with submission of the material. Okay, second step, very important, which we have discussed earlier, that is to find out the target mean strength or the target strength for the mix proportioning. हमारे पास में वो इक्वेशन है, वो हिम्सवर्थ का जो इक्वेशन है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ने ये इक्वेशन दिया ही है, इंडियन स्टैंडर्ड 10:62 में, in order that not more than the specified proportion of the test results are likely to fall below the characteristic strength, the concrete mix has to be proportioned for higher target mean compressive strength FCK dash। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया है FCK डैश से, और FCK यानी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, FCK डैश यानी टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमको क्यों बोलता है ये इंडियन स्टैंडर्ड हायर वैल्यू को क्यों किया करना चाहिए हमने कंक्रीट मिक्स डिजाइन? क्योंकि लेबोरेटरी में हम जो कंक्रीट बना के उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी कंडीशंस आर आइडियल एज कंपेयर टू कंडीशंस एट दी साइट, एट साइट। ठीक है, लेबोरेटरी में हम क्यूब जो कास्ट करने वाले हैं वो 24 घंटे और 28 दिन पानी में ही डुबा के रखने वाले हैं, लेकिन साइट पे क्यूरिंग हम 24 आवर्स पानी नहीं डालते कंक्रीट के ऊपर में, आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, वी कीप द कंक्रीट सरफेस मॉइस्ट बट वी डोंट क्यूर इट 100%। बाकी भी साइट की जो प्रोपोर्शनिंग, जो क्वांटिटी हम लेते हैं वो कितने प्रिसाइजली लेते हैं, मिक्सिंग कितने प्रिसाइजली करेक्ट करते हैं, प्लेसिंग कितने करेक्ट करते हैं कि सेग्रीगेशन ना हो, वाइब्रेशन, and all the methodologies including curing means from weigh batching or the volume batching to the curing, इसमें site to site it will be different, and that will again depend on the person who is carrying out the work। उसको वर्कमैनशिप करके बोलते हैं इंग्लिश में। वो वर्कमैनशिप जितनी अच्छी उतने आपके साइट का क्वालिटी कंट्रोल बढ़िया। ठीक है, तो उसके ऊपर ये फैक्टर रहेगा। तो उसका जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फार्मूला जो इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है, जो हमने अभी पिछले 2 स्लाइड पहले देखा था या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दैट टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK प्लस K, द हिम्सवर्थ कांस्टेंट। इंडियन स्टैंडर्ड हैज गिवन इट रेडीमेड, ये वैल्यू 1.65 उसने दे ही दिया इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है ये आपको एक तो जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है उससे वर्कआउट करनी है। यदि आपके पास में क्यूब डाटा है तो यानी उसके कंक्रीट क्यूब कास्ट किए और उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप पहली बार यदि कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके पास में कोई डाटा नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये इंडियन स्टैंडर्ड ने एस की भी वैल्यू दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड 10:62 as well as Indian standard 456 has given all these ready-made values. Okay, so the target mean strength is equal to characteristic compressive strength. This characteristic compressive strength is nothing but the strength given by the structural engineer
फॉर दैट कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या चाहिए, M15 चाहिए, M30 चाहिए, M40 चाहिए, वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। फॉर समझो 20 M20 का है तो 20 प्लस 1.65 इंटू एस, एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया ही है। वो क्या है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप नंबर 2 आपके ध्यान में आ गई कि स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड आउट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द डाटा प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द मटेरियल। और डाटा प्रिपरेशन में कौन सा डाटा, लिस्ट ऑफ द डाटा। सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सॉल्व करने वाले। अब इसमें क्या रह गया है, द वैल्यू ऑफ एस रह गया, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ सी के हमको मालूम है 1.65 तो दिया ही है, और एस की वैल्यू यदि पुट की है तो वी विल गेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। फॉर दिस टारगेट मीन स्ट्रेंथ वी हैव टू डिजाइन द कंक्रीट, वी हैव टू फाइंड आउट द कंक्रीट ingredients so that the cubes casted out of that concrete will have this strength, not this strength, required strength नहीं, जो ज्यादा की स्ट्रेंथ है वो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमको कंक्रीट डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये जो एस की एस वैल्यूज है, दिस एस वैल्यूज आर गिवन in the table number 1, in table number 1 of the Indian Standard 10262. These values of the S are given in the table number 1 of the Indian Standard 10262. इसलिए मैंने आप सबको ये इंडियन स्टैंडर्ड की जो 10262 है ये 4 दिन पहले ही आपको दे दिया, ताकि आप ये अभी भी आपके पास में यदि प्रिंट होगी तो आप ओपन करके देख सकते हैं, या नहीं होगी तो बाद में आप जरूर आपके सॉफ्ट कॉपी में देखिए। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 1 में ये एस की वैल्यू है। फॉर M10 एंड M15 द वैल्यूज आर 3.5, 20 एंड 25 इट इज 4, एंड मोर देन 25 अप टू M55 इट इज 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज यू कैन पुट दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये आपकी यदि आपको M25 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है तो आप 4 वैल्यू रखेंगे, तो 25 प्लस 1.65 इंटू 4, इसकी जो भी टोटल आएगी वो लगभग 27.5 के पास में आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वो स्ट्रेंथ के लिए आपको ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है। सो सेकंड स्टेप मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गई है। ठीक है, साथों साथ आप ध्यान में रखते जाइए। फर्स्ट स्टेप इज टू prepare the data sheet and submission of the material. Second step is to find out the target mean strength. For the target mean strength, the formula is given by the Indian standard. Okay. Now the third step. Third step is now to find out the water cement ratio. Okay. A very simple step. Water cement ratio, क्योंकि हम जब पहली बार डिजाइन कर रहे हैं, है ना, हम सब नए हैं अभी, आप लोग मेरे से भी नए हो, तो जब फर्स्ट टाइम कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि भाई M20 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है, तो इसके लिए वाटर सीमेंट रेशो हमने क्या लेना चाहिए। ठीक है, मेरे पग मैंने यदि इसके पहले 5-10 कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर चुका हूं M20 के, तो मुझे अंदाजा आता है कि भाई वाटर सीमेंट रेशो कितना लेना चाहिए, है ना। पहली बार यदि चाय बना रहे हैं तो नहीं समझते कितनी शक्कर डालना चाहिए, 2-4 बार चाय बनाया तो फिर समझता है अरे 1 कप के लिए कितने, 1 चम्मच डालना, 2 चम्मच डालना, 2 कप के लिए कितना, 3 कप के लिए कितना। तो वैसा कंक्रीट मिक्स डिजाइन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये वाटर सीमेंट रेशो क्या लेना है ये आपको मालूम नहीं है ना, तो उस कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से इंडियन स्टैंडर्ड ने उसका सोल्यूशन दिया है। लेकिन यदि आपने पहले किया है 4-5 बार कंक्रीट मिक्स डिजाइन और आपको उसके अनुभव से मालूम है कि अरे वाटर सीमेंट रेशियो ये लेने के बाद भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आती है M20, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि 2 ऑप्शन है आपके पास में, आइदर with the past experience you can take, or the Indian standard as per the Indian standard 456 table 5, मैं आगे में बताने वाला हूँ।
वो टेबल से आप वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला, अब वो काहे के ऊपर डिपेंड है वाटर सीमेंट रेशियो? ये वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, है ना। हमको क्या कंसीडर करना है? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी। ठीक है, तो हमने स्ट्रेंथ पैरामीटर तो हमारे स्टेप नंबर 2 में सॉल्व कर दिया कि हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए उससे हम लगभग ज्यादा ही स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास में है। अभी नेक्स्ट क्या है कि हमें वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। तो वाटर सीमेंट रेशियो अब काय के ऊपर डिपेंड है? वो ड्यूरेबिलिटी, है ना। पानी ज्यादा तो ड्यूरेबिलिटी कम, पानी कम तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, यानी छेद कम रहेगी, वाइड्स कम रहेगी, और स्ट्रेंथ भी उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वाटर सीमेंट रेशियो कैसे लेंगे ये समझ लेते हैं। ये टेबल नंबर 3 है, फिर से इंडियन स्टैंडर्ड 456 में। ठीक है, दिस इज द टेबल नंबर 3 विच इज इन इंडियन स्टैंडर्ड 456। एक्सपोजर कंडीशन इसमें दिया है। ठीक है, ये टेबल 3 में एक्सपोजर कंडीशन दिया है। 5 एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये काय की एक्सपोजर कंडीशन है? ये कंक्रीट की एक्सपोजर कंडीशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हुए किसके ऊपर स्ट्रेस दिया था कि आवर कंक्रीट इज एक्सपोज्ड इन आवर विदर्भा रीजन फ्रॉम द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट 8 डिग्रीज, कभी तो 8 डिग्री से भी कम जाता है, लेकिन हम 8 डिग्रीज कंसिडर करते, डिग्री सेल्सियस, टू मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 47 डिग्रीज इन द समर, उसको बोलेंगे एक्सपोजर कंडीशन। एखादे बार हम यदि नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, चेरापूंजी जिसको बोलते हैं, आसाम चेरापूंजी, जहां पे साल भर बारिश गिरती रहती है, तो एक्सपोजर कंडीशन बहुत मॉइस्ट कंडीशन होगी। यदि हम जम्मू कश्मीर में, शिमला, कुल्लू मनाली में है, तो वहां हरदम टेम्परेचर ये 5-7 डिग्री रहता है, उससे ज्यादा रहता ही नहीं, तो उसको एक्सपोजर कंडीशन सीवियर कोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर एंड द एक्सट्रीम, ऐसे इसमें इंडियन स्टैंडर्ड ने ये एक्सपोजर कंडीशन दिया। माइल्ड कंडीशन है ना, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, है ना। हमारे घर के अंदर का यदि एक आधी बीम, कॉलम, स्लैब है, तो ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हो गया। मॉडरेट यानी कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग, व्हील्स वेट, concrete exposed to condensation and rain, concrete continuously underwater. Severe यानी concrete surface exposed to severe rain, alternate यानी जैसे हमारे एरिया का है, इसको हम severe exposed, और very severe यानी concrete surface exposed to sea water, extreme यानी concrete surface to tidal waves वगैरह, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड, सॉलिड, एग्रेसिव केमिकल। ठीक है, तो मुझे लगता है इन शॉर्ट आपके ध्यान में एक्सपोजर कंडीशन, इसके ऊपर में हम जो वाटर सीमेंट रेशियो अभी अगला टेबल देखने वाले हैं, टेबल नंबर 5, उसके ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये अभी आप अच्छे से ध्यान में दीजिए, ये टेबल नंबर 5, पेज नंबर 20 अब इंडियन स्टैंडर्ड 456। ठीक है, आपके पास में नहीं भी होगा तो भी मैं अभी अपने गूगल क्लास के ऊपर में ये क्लास के बाद में डाल दूंगा, IS 456 2000। ठीक है, उसमें टेबल नंबर 5 है, नहीं तो आपके पास में नोट्स में ये है भला, मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसमें ये सब रेडीमेड अवेलेबल है प्रोसीजर। So our step number 3 is to find out the water cement ratio, and we'll be finding it with the help of this table number 5. You can see the column number 2 is the exposure condition, mild, moderate, severe, very severe and extreme. ठीक है, अभी हमने देखा ये एक्सपोजर कंडीशन के लिए प्लेन कंक्रीट and the reinforced concrete. You understand the meaning? Plain concrete means without reinforcement, and reinforced concrete means with the reinforced. Okay, तो दोनों कंक्रीट के लिए ये एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपने कौन से ग्रेड का कंक्रीट लेना चाहिए, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8। ठीक है, जैसे माइल्ड के लिए, जैसे समझो M15 है, ठीक है, यहाँ पे प्लेन कंक्रीट के लिए M15 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आपने वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 लेना चाहिए, आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो। और कम से कम सीमेंट जो है
एक्सपोजर कंडीशन या ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 240 kg पर मीटर क्यूब लेना चाहिए, ठीक है, 240 kg पर मीटर क्यूब। आई थिंक स्लोली यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये रीइंफोर्स कंक्रीट है, तो रीइंफोर्स कंक्रीट में आपका इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला है रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए M20 के नीचे का कंक्रीट यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो M20 का कंक्रीट आपका रीइंफोर्स कंक्रीट है, तो M20 के लिए आपको 0.55 का वाटर सीमेंट रेशियो आप शुरू में ले सकते हैं फॉर योर कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस, ओके, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, यू डोंट हैव द डाटा। तो आपने 0. हम ऐसा समझते हैं कि भाई M20 के लिए आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 लिया, और जब आप सीमेंट उसमें डिसाइड करेंगे तो वो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू शुड नॉट बी लेस देन 300 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट के लिए M25, 30, 35, 40 इन सब के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया है, और कम से कम सीमेंट कितना यूज करना वो भी दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा ये फिर से वही टेबल है, मैंने लार्ज स्केल में आपको बताया है, प्लेन कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, एक्सपोजर कंडीशन and the minimum cement content, maximum water cement ratio, and the minimum grade of concrete. Again for the reinforced concrete same, ठीक है। हमें क्या देखना है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट का हमको मिक्स डिजाइन करना है, उसके अगेंस्ट में वाटर सीमेंट रेशियो कौन सा लेना है, और उसके अगेंस्ट में कम से कम सीमेंट कितना, वैसा ही प्लेन कंक्रीट के लिए भी। तो हमारी स्टेप नंबर 1 डाटा शीट एंड डाटा एंड मटेरियल सबमिशन, step number 2 target mean strength, step number 3 we have decided the water cement ratio, ठीक है। जैसे M20 का हम अभी एज्यूम करते हैं, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हो गया 0.55। अभी नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप नंबर 4 इज द सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट, कि एक क्यूबिक, ये अब जो पूरा हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, यानी पूरे कंक्रीट के जो इनग्रेडिएंट निकालने वाले हैं वो हम 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट के लिए निकालने वाले हैं, ठीक है। ये अभी आगे से ध्यान में रखना। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए जो भी हम ग्रेड का कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, उसमें मिनिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर या ऑप्टिमम वाटर क्वांटिटी कितनी लेना चाहिए, ये भी इंडियन स्टैंडर्ड ने रेडीमेड दिया है, ठीक है। यानी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप अभी तक क्या आपको कोई कैलकुलेट करना पड़ा क्या, सिर्फ टारगेट मीन स्ट्रेंथ वो भी वैल्यू दिया है, बाद में वाटर सीमेंट रेशियो वो भी आपको रेडीमेड दिया है, और अभी तीसरा है वाटर कंटेंट, पानी कितना लेना है 1 क्यूबिक मीटर में, वो काय के ऊपर डिपेंड है, आपके मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट के ऊपर में डिपेंड है। आपका यदि 10 mm का एग्रीगेट है, MSA 10 MSA का, तो आपको 208 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ द वाटर आपको यूज करना है, दिया है इंडियन स्टैंडर्ड ने रेडीमेड, ये उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से निकाला है और वो दिया है। 20 MSA का है तो आपको 186 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेना है, 40 MSA का है तो आपको 160 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पानी लेना है, ठीक है। अभी आप ये टेबल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये टेबल के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव फाउंड आउट नाउ, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव M20 ग्रेड कंक्रीट ऑफ 20 MSA, ठीक है। हमारे को कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है M20 का, यानी जिसका स्ट्रेंथ रहेगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज जो है वो 20 MSA है, 20 mm है। तो हमने पानी कितना लेना है, 186 लीटर। ये सब हमको एक नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप, जब हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, कैसे है एक सॉल्यूशन में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला। So we have decided the water cement ratio. We have found out the quantity of the water. ठीक है, पानी कितना लगेगा। अब ये पानी बढ़ाना कितना है, घटाना कितना है, ये थोड़ा सा आगे के 1-2 स्लाइड में हम देख लेते हैं। So this water which has been given by this in this table number 2 is for the angular coarse aggregate, है ना, क्रश्ड कोर्स एग्रीगेट के लिए ये पानी की क्वांटिटी दिया है, और जिसके लिए स्लम 25 से 50 mm रहेगा उसके लिए ये इतना पानी दिया है। आईएस ने क्या बोला,
कि भाई ये जो पानी मैंने आपको रेडीमेड दिया है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू बी यूज is for the coarse aggregate which are crushed or angular, as well as the slump or the workability will be 25 to 50 mm. यदि आपको आपका एग्रीगेट यदि दूसरा है, जैसे सब एंगुलर है, यानी एंगुलर नहीं है, क्रश्ड पूरा एंगुलर नहीं है, सब एंगुलर है, थोड़ा क्रश्ड है, थोड़ा स्फेरिकल है, ऐसा मिक्स्ड है, तो ये पानी आप कम कर सकते हैं 10 किलोग्राम से, ठीक है. इफ योर एग्रीगेट इज सब एंगुलर देन यू कैन रिड्यूस द वाटर बाय 10 किलोग्राम, यानी ये 186 की जगह आप 176 ले सकते हैं. और यदि आपका सर्कुलर एग्रीगेट है या स्फेरिकल है, राउंडेड है, ग्रेवल गोल गोल वाला एग्रीगेट है ना, नेचुरली उसको पानी कम लगेगा वर्केबिलिटी के लिए, तो आप 25 kgs ऑफ द वाटर यू कैन रिड्यूस. Okay, only you have to mention in the calculations that 25 kgs of the water is reduced for as the aggregate being circular or the spherical. ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके ध्यान में आ गई. और दूसरा जो एस्पेक्ट है, हमने देखा कि ये जो वाटर दिया है ये 25 से 50 mm के स्लम्प के लिए दिया है. यदि आपका स्लम्प इससे ज्यादा आपको रखना है, 100 mm का स्लम्प रखना है या 75 mm का स्लम्प रखना है, काय के ऊपर ये स्लम्प डिपेंड है, ये आपको वर्केबिलिटी के ऊपर डिपेंड है. ये यहाँ पे मैंने इसलिए फोटोग्राफ डाले, ये देखो पंपेबल कंक्रीट है, तो इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है, इसका स्लम्प ज्यादा आएगा. ये शूट है, इसको नाली जो है इसको शूट करके बोलते हैं, तो ये शूट से पाया कंक्रीट नीचे घसरना चाहिए, तो इसको भी वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए. ये अभी हम पैन से, ट्रॉली से या घमेले से डाल रहे हैं, तो इसको थोड़ा कम पानी रहा तो चलेगा. ठीक है, ये तीनों वर्केबिलिटी कंडीशन यू कैन सी, इस पर से आपको वर्केबिलिटी ध्यान में आएगा. तो यदि आपको वर्केबिलिटी या स्लम्प 25 mm से बढ़ाना है, यानी 50 की जगह यदि 75 mm का स्लम्प आपको चाहिए, तो आपको 3% ऑफ द वाटर बढ़ाना है. ठीक है, 3% ऑफ द वाटर यू कैन इंक्रीज. यदि आपको 100 mm का स्लम्प चाहिए, है ना, पंपेबल कंक्रीट के लिए मैंने बताया था वी नीड मोर स्लम्प, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द वाटर बाय 3% प्लस 3%, 6%. ठीक है, क्योंकि आपको 50 के ऊपर में हर 25 mm के लिए स्लम्प बढ़ाने के लिए 3% वाटर आपको इंक्रीज करना है. ठीक है, ये पहली बार सुन लीजिए, प्रोसीजर आप करेंगे एकदम पहले, इसमें थोड़ी इतनी चीजें ध्यान में आने वाली है, तो लेकिन ये समझते जाइए प्रोसीजर. और आपको ये लेक्चर बाद में वीडियो भी मिलने वाला है ना, आप में से कोई देखता ही नहीं है वीडियो लेक्चर, आप में आपके क्लास का मुझे साइकोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही. क्लास तो अटेंड करते ही नहीं है, जो 15-20 करते हैं वो वीडियो लेक्चर भी बाद में देखते नहीं है. यानी मुझे तो हाथ जोड़ने की इच्छा हो रही है आप सभी लोगों को. आपने तो ये आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा वो देखना चाहिए, बार बार वीडियो देखना चाहिए, लाइक है तो लाइक करना चाहिए, नहीं पसंद है तो वो लिखना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते. तो ये जो स्टेप है इसमें हमने क्या किया कि वाटर जो क्वांटिटी है वो फिर और फाइनलाइज किया फॉर इंक्रीजिंग द स्लम्प और वर्केबिलिटी. For every 25 mm increase of the workability, we can increase the water by 3% of that water given in table number 2. ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर तो पानी बढ़ाने को बोल रहे हैं और उधर बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशो कम भी रहना चाहिए. हाँ, यदि आप एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द एडमिक्सचर, मे बी प्लास्टिसाइजर और इफ सुपर प्लास्टिसाइजर, जो भी आप, या एयर एंट्रेनिंग एजेंट या रिटार्डर, ठीक है, जो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ाने में मदद कर रहा है, ऐसा एडमिक्सचर यदि आप यूज कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिसाइजर यू कैन रिड्यूस द वाटर फ्रॉम 5% टू 30 to 40%. ठीक है, 5, 10 या 20% तक आप ये पानी कम कर सकते हैं जो आपने अभी बढ़ाया है. For want of the workability, you have increased the water, but this water can be reduced if you are using the admixtures to the extent of about 30%. ठीक है, कैसा करते हैं वो हम आगे में देखते हैं कैलकुलेशन. तो ये वाटर का प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया.
अभी तक के स्टेप में हमने क्या किया, डाटा शीट बनाया, मटेरियल सप्लाई किया है, उसके वो आगे के स्टेप नंबर 2 में हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाला, उसके आगे के स्ट्रेंथ में हमने स्टेप में हमने टेबल नंबर 5 जो है वो टेबल नंबर 5 ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456 पेज नंबर 20, वो देख के हमने वाटर सीमेंट रेशियो फाइनल किया है। और अभी के जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने वाटर भी फाइनल किया है। कितना काम हो गया, आधा काम तो खत्म हो गया। हमारे कंक्रीट के इंग्रेडिएंट का एक इंग्रेडिएंट तो आपने निकाल लिया, वाटर। अब आपके पास में वाटर है, आपके पास में वाटर सीमेंट रेशियो भी है जो आपने डिसाइड किया 0.55 M20 के लिए। सो यू हैव द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55. Water cement ratio is the ratio of the water divided by the cement. You have water cement ratio. You have the water quantity. So you can find the quantity of the cement. कितना इजी है ना? तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेशन द सीमेंटिशियस और द सीमेंट क्वांटिटी। सीमेंटिशियस मटेरियल यानी जो सीमेंट का काम करता है, तो हम सीमेंट अभी बोलेंगे, अभी के लिए उसको सीमेंटिशियस मटेरियल को सीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी सीमेंट भी वर्कआउट हो गया है ना। कितना काम हो गया, आधा काम खत्म हो गया। कंक्रीट के दो इंग्रेडिएंट आपके ध्यान में आया ना, सीमेंट कैसे वर्कआउट किया। वाटर सीमेंट रेशियो हमारे को टेबल नंबर 5 से पता चल गया। वाटर की क्वांटिटी अभी हमने लास्ट स्टेप में टेबल नंबर 2 से निकाला। वो क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट और एडमिक्सचर हमने काम किया, सो वाटर भी हो गया। अब वाटर सीमेंट रेशियो मालूम है, वाटर मालूम है, तो वो इक्वेशन में दो चीजें मालूम है, सिर्फ मालूम नहीं है सीमेंट, तो वी कैन फाइंड आउट द सीमेंट। सो यू हैव फाउंड आउट द टू इंग्रेडिएंट्स, दैट इज वाटर एंड द सीमेंट। कंक्रीट मिक्स डिजाइन का आधा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब सिर्फ ये सीमेंट आपने वर्कआउट करने के बाद में ये देखना है कि जो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो जो टेबल नंबर 5 देखा था, वो टेबल नंबर 5 में हमने देखा था कि M20 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 और उसके बाजू के ही कॉलम में मिनिमम सीमेंट हमने देखा था 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो सीमेंट हमने अभी वर्कआउट किया है, ये सीमेंट 300 किलोग्राम पर एम क्यूब से कम नहीं होना चाहिए। उससे कम रहा तो हमको फिर 300 पे ही स्टिकअप रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, हमारा सीमेंट 300 से ज्यादा यदि आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको घटाना नहीं है हमको 300, लेकिन 300 से यदि कम आता है तो हमें वी हैव टू स्टिक अप टू द 300, ठीक है। अभी एक मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि सैंड जो रहती है फाइन एग्रीगेट, वो फाइन एग्रीगेट का हम सीव एनालिसिस करने के बाद में या ग्रेडिंग करने के बाद में वो सैंड को हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, है ना। थोड़ा आप याद कीजिए, सीव एनालिसिस ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। सैंड को हम दो टाइप से क्वालिटी उसकी जांचते हैं। एक तो फाइननेस मॉड्यूलस, जो फाइननेस मॉड्यूलस जनरली 2.6 से 3.2 के बीच में चाहिए, और दूसरा है ये जोनिंग है। सैंड को सीव एनालिसिस करते हैं हम, ग्रेडिंग करते हैं और परसेंटेज पासिंग वर्कआउट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300, 150 माइक्रोन के सीयू में से परसेंटेज पासिंग निकालते हैं। और वो परसेंटेज पासिंग जिस कॉलम, अभी ये जोन वाइज हमें क्राइटेरिया दिया है, जोन 1 के लिए परसेंटेज पासिंग थ्रू दिस सीव्स इज गिवन, जोन 2 के लिए परसेंटेज पासिंग का क्राइटेरिया था, जोन 3 के लिए, जोन 4 के लिए दिया है। तो हमारे जो सैंड जो हमें साइट पे यूज करना है, वो सैंड का कौन से जोन में वो बैठती है, कौन से जोन में सीव एनालिसिस करने के बाद मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो सैंड का वो जोन हम फाइनल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम समझते हैं कि हम जो सैंड यूज कर रहे हैं वो जोन 2 की सैंड है। वैसे भी जोन 2 की सैंड आइडियल सैंड होती है, ठीक है। इसमें सब हमें आखिर में एग्रीगेट कैसे चाहिए, वेल ग्रेडेड चाहिए, वो फाइन रहे कि कोर्स एग्रीगेट रहे, ताकि सभी वॉइड्स फिल हो। तो जोन 2 सैंड इज द बेस्ट, जोन 1 सैंड इज द कोर्सर देन द जोन 2, थोड़ी जाडी सैंड, जोन 3 सैंड इज फाइनर देन जोन 2,
एंड जोन 4 सैंड बहुत फाइन रहती है, ये हम यूज ही नहीं करते, ये सिर्फ प्लास्टर के लिए यूज करते, कंक्रीट में नहीं करते। मैंने बताया था आपको, थोड़ा याद कीजिए आप। ठीक है, अभी के लिए हम समझते हैं हमारी जोन 2 की सैंड है। ये मैंने फिर से आपको उस वक्त भी आपको बताया था, ये जोनिंग ऑफ द सैंड इज डन फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ओके, ये हम साइट के ऊपर ऐसे नहीं करते रेगुलरली, वो सिर्फ फाइनेस्ट मॉड्यूलस निकालते हैं। ये करस्पॉन्डिंग आईएस ऑफ दिस जोनिंग इज इंडियन स्टैंडर्ड 383 1970 है ना। आपको नेट के ऊपर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप ग्रुप पे डालिए, मैं आपको इसकी भी कॉपी भेज दूंगा। ठीक है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से ये जोनिंग दिया है उसमें। तो ये जोन 2 की हमारी सैंड है, ऐसा हम समझेंगे। हमें क्या चाहिए, अभी क्या बचा है, हमने वाटर निकाला, हमने सीमेंट निकाला, एडमिक्सचर हमको लगभग दिया ही है, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड 456 बोलता है कि भाई आपको 0.5 से लेके तो 2% तक ही बाय वेट ऑफ द सीमेंट आपको एडमिक्सचर यूज करना है ना। बोला ना मैंने आपको, एडमिक्सचर का जब हमने यूनिट इसका पार्ट लिया तब उसमें इंडियन स्टैंडर्ड 456 में दिया है तो आपको 0.5% टू 2% बाय वेट ऑफ द सीमेंट, उससे ज्यादा एडमिक्सचर यूज करने की पावर ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि वो एडमिक्सचर्स आर द केमिकल्स एंड मोर एडमिक्सचर्स आर डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ द कंक्रीट, वो करोड़ करते हैं। अब हो गया, अब आपका बचा ही क्या है, पानी निकाला, सीमेंट निकाला, एडमिक्सचर निकाला, अब बचा है सिर्फ एग्रीगेट, और एग्रीगेट में कोर्स और फाइन एग्रीगेट, हो गया आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ये लेकिन क्वांटिटी काय के लिए निकाल रहे हैं आप, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, यानी क्वांटिटी तो वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए, और क्वांटिटी काय में निकाल रहे हैं, वेट में निकाल रहे हैं। So we are finding the quantity by the directions of 10 to 62 for 1 cubic meter volume, but it is in the weights, it is in the mass. ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी हमें एग्रीगेट निकालना है, तो अब पहले कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ये भी इंडियन स्टैंडर्ड ने दे दिया है भाई। ये टेबल नंबर 3 ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड 10 to 62 has given the quantity of the aggregate in the total volume of the concrete। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कितना रहना चाहिए, ये वो इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया है। सिर्फ वो काय के ऊपर डिपेंड है, वो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड जोनिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट। अभी हमने जोन देखा फाइन एग्रीगेट या रेती के, जोन 1 2 3 4, और हमने मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी हमें मालूम है। हमारा जो कंक्रीट है वो 20 MSA का है, और जो हमारी सैंड है वो जोन 2 की है। तो एग्रीगेट का परसेंटेज कितना हो गया, कोर्स एग्रीगेट का, वो हो गया 62% या 0.62। ओके, सो इट इज वेरी इजी। ये टेबल हमारे पास में रेडीमेड है, 10 to 62 टेबल नंबर 3। आप फिर से देखिए, ये लेक्चर होने के बाद में गो थ्रू द नोट्स, और वो आईएस भी दिया है कि भाई सर ने बोला है वो गलत है कि बराबर है। तो ये 0.62 या 62% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट इज द वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट। ओके, तो नेचुरली यानी टोटल एग्रीगेट का 62% इज कोर्स एग्रीगेट, तो नेचुरली 38% इज द फाइन एग्रीगेट, है ना। टोटल एग्रीगेट जो है वो यदि 100% है, और उसमें से यदि 62% यदि कोर्स एग्रीगेट है, तो बचा कितना, 100 माइनस 62 इज द 38। सो 38% इज द फाइन एग्रीगेट। देखो बोला, यानी अभी एग्रीगेट भी इन वॉल्यूम हमने निकाल लिया। ठीक है, एग्रीगेट का जो ये परसेंटेज दिया है बाय वॉल्यूम दिया है, ये बाय वेट नहीं दिया है। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, और ये 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में if x cubic meter is the aggregate, if x cubic meter is the aggregate, then 0.62x is the volume of the coarse aggregate, and 0.38x is the volume of the fine aggregate. So now what we have to find out, we have to find out the value of x, that is the volume of the total aggregate, so as to get the volume of the fine aggregate and the coarse aggregate. How it is to be done, that we will be discussing in next 2-3 slides। ठीक है,
तो ये अभी तक के हमने समझ लिया क्या क्या किया। पहली स्टेप में हमने डाटा शीट भर दिया और हमने मटेरियल सप्लाई किया लेबोरेटरी में। दूसरे स्टेप में हमने टारगेट इंस्टेंट डिसाइड किया। तीसरे स्टेप में हमने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड किया टेबल नंबर 5 से। चौथे स्टेप में हमने वाटर डिसाइड किया। पांचवें स्टेप में हमने सीमेंट डिसाइड किया। छठवें स्टेप में हमने अभी कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज निकाला एमएसए और जोनिंग ऑफ द सैंड से। ठीक है, अब ये कोर्स एग्रीगेट, अब टोटल एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट कितना और फाइन एग्रीगेट कितना, ये हमें जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 383 है इसमें उसने गाइडलाइन दी है। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ग्रेडेशन वगैरह तो ये टेबल हमारे और अच्छे से ध्यान में आएगा। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का ग्रेडेशन किया, फाइन एग्रीगेट का, और कितना कोर्स और कितना फाइन, ये हमारे को ये निकालना है। ठीक है, ये सब इंडियन स्टैंडर्ड में, और हमने यूनिट 1 में इसको डिस्कस भी किया है एग्रीगेट के ग्रेडेशन के बारे में। एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए कितना परसेंटेज पासिंग अलग अलग एग्रीगेट का चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं अभी कि हमारे पास में ये चीजें हैं। तो हमारे पास में अभी क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में? वी हैव द वेट ऑफ द वाटर, वी हैव वेट ऑफ द सीमेंट, we have the volume of the coarse aggregate out of the total aggregate, we have the volume of the fine aggregate out of the total aggregate। ठीक है, टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम x क्यूबिक मीटर है, तो 0.62x is the volume of the coarse aggregate and 0.38x is the volume of the fine aggregate, but it is in volume, in 1 cubic meter of the concrete. Now we know all the ingredients except aggregate. Now how to find out volumetrically the value of the x is very simple. Just you have to write down the equation, that is 1 cubic meter of concrete is equal to, okay, 1 cubic meter, 1 is equal to the volume of the cement, okay, volume of the water, volume of the admixture plus volume of the aggregate, that is x, that you know. Now how to find out the volume of the cement, water and the admixture? इसके लिए क्या है कि सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को यदि हमने 100 या सीमेंट के वेट को या सीमेंट के मास को यदि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड किया तो हमें सीमेंट का वॉल्यूम आएगा। और ये 1 क्यूबिक मीटर में कितना चाहिए, तो इसके लिए ये जो वैल्यू है कि सीमेंट का वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, या सीमेंट का वेट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1 ही है डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको वाटर का वॉल्यूम आएगा, प्लस अपना एडमिक्सचर का जो वेट है डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एडमिक्सचर जो दी हुई रहती है and multiplied by 1/1000 or divided by 1000 will give you the volume of the admixture। तो ये इक्वेशन आपके पास में हो गया, 1 cubic meter of the concrete is equal to volume of the cement plus volume of the water plus volume of the admixture। कैसे निकाला मैंने बताया आपको, प्लस x, that is the volume of the course, volume of the total aggregate। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर दिया क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ दी, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की मालूम है, आपने वर्कआउट किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस किया है कैसे निकालते, फिर से मैं आपको समझा के दूंगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मालूम है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दी वाटर भी मालूम है, 1 है, मैंने आपको बताया। और जो एडमिक्सचर प्रोड्यूस करता है वो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एडमिक्सचर भी देता है, या आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है, ऐसा समझते हैं, तो आपको वो भी मालूम है। आपको वेट ऑफ द एडमिक्सचर भी मालूम है क्योंकि वो 0.5 to 2% बाय वेट ऑफ द सीमेंट है। ठीक है, so you know the weight of the cement, so you know the volume of the cement, you know the weight of the water, so you know the volume of the water, you know the weight of the admixture, so by dividing it by specific gravity and 1000, तीनों को भी
अब उनके उनके स्पेसिफिक ग्रेविटी और 1000 से डिवाइड किया, तो 1 क्यूबिक मीटर में इन लोगों के वॉल्यूम कितने हैं ये मालूम है, प्लस एक्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट ओनली, यू डोंट नो, so you can find the volume of the aggregate. Okay, यही अभी नेक्स्ट स्टेप है अपनी कि वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट। अब इसका 62% जो हमने देखा था, जो भी एक्स वैल्यू आएगी उसका 62% इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, उसका 38% इज द वॉल्यूम ऑफ द फाइन एग्रीगेट। ओके, आई थिंक एवरीबडी इज बिट अंडरस्टैंडिंग, स्लोली वी विल रिपीट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हमें क्या पता चल गया, वेट ऑफ द सीमेंट हमारे कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर के मिक्स डिजाइन में, वेट ऑफ द सीमेंट, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट एंड वॉल्यूम ऑफ द फाइन एग्रीगेट इन 1 क्यूबिक मीटर। लेकिन हम तो वेट से काम कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूम को वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे वेट को अभी हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, वैसे ही अभी वॉल्यूम को वेट से कन्वर्ट करेंगे। कि ये जो वॉल्यूम आया है, जैसे 0.62x और 0.38x मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी हमने डिवाइड किया था, तो ये एग्रीगेट के वॉल्यूम को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस अभी हमने उसको 1000 से डिवाइड किया था, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.62 फॉर कोर्स एग्रीगेट, multiplied by उसका specific gravity multiplied by the 1000 will give you weight of the coarse aggregate. Also in the same way you can find out the weight of the fine aggregate. हो गया concrete mix design. So you have found out the weight of the cement, you have found out the weight of the water, ये step हमने देखा ही अभी, you have found out the weight of the admixture and you have found out the weight of the coarse aggregate and fine aggregate. Finish. 1 क्यूबिक मीटर के लिए ये आपके पास में तैयार हो गया। ठीक है, अब आपको लेबोरेटरी में 1 क्यूबिक मीटर बनाना है तो बहुत इतना ही कर सकते हैं आप लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी का काम चालू है ना ये। तो हमें क्या करना है, वो जो कंक्रीट हम लैब में इतना 1 क्यूबिक मीटर यानी काफी बड़ा हो जाता है, उसके लिए तो सब मटेरियल बहुत ज्यादा लगेगा। और अभी तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 बैग सीमेंट, 2 बैग गिट्टी, 2 बैग रेती और 1 लीटर या 5 लीटर एडमिक्सचर, सिर्फ इतना भेजना है लैब में। तो क्या हमें क्या करना है फिर, क्योंकि हमें क्यूब कास्ट करना है, ठीक है, 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज के लिए एक सेट में 3 क्यूब कास्ट करते हैं हम। ठीक है, तो 3 ट्रायल हमको लेना है, कौन सी, 3 डेज के लिए, 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए। तो ये क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, ये 9 क्यूब के लिए। अब हमारे को, हमने अभी दो चीजें हासिल किया, एक क्या किया कि स्ट्रेंथ पैरामीटर, द सेकंड इज द ड्यूरेबिलिटी पैरामीटर, जो सीमेंट वर्कआउट करने, वाटर सीमेंट। अब वर्केबिलिटी रह गया, तो हमें वर्केबिलिटी कैसी पता चलेगी, हमें वर्केबिलिटी पता चलेगी स्लम केस से, तो हमें स्लम कोन कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लम कोन कास्ट करने के लिए हमें स्लम के लिए भी वॉल्यूम लगेगा, तो वो भी वॉल्यूम निकालना है हमको एक स्लम का, और उतने वॉल्यूम में थोड़ा सा वेस्ट जाएगा, ऐसा समझ के 25% मोर क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट, इसका पहले वॉल्यूम निकालना है। मींस 9 क्यूब्स प्लस 1 कोन, इसका वॉल्यूम प्लस 25% मोर मींस 1.25, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट यू हैव फाउंड आउट नाउ। दैट वॉल्यूम में कितना सीमेंट, कितना वाटर, कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर, ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपने जो अभी निकाला, उस पर से उतने क्वांटिटी के लिए निकालना है। ठीक है, और फिर उसका कंक्रीट लेबोरेटरी में बनाना है, एक्चुअली हमें कास्ट करना पड़ता है, और फिर उसका वो कंक्रीट बनाने के बाद में वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करना है स्लम कोन से। लेकिन उसके पहले उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है, वो होमोजीनियस है, ये सब हमें लेबोरेटरी में देखना है। इसलिए मैंने बोला ये रेसिपी है, और ये देखने के बाद में यदि वो कंक्रीट सब अच्छा है, मस्त लैब में अच्छा बना है, कैसा मस्त है वो मैं आगे के लेक्चर में समझा दूंगा। और फिर हम क्या करेंगे कि उसके क्यूब कास्ट करेंगे, है ना, 9 क्यूब कास्ट करेंगे,
और उसको 28 दिन, 7 दिन और 3 दिन के लिए क्यूरिंग करेंगे। ये तो हो गई एक ट्रायल। हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन खत्म नहीं हुआ अभी। यही प्रोसीजर हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा चौथा क्या हमारा क्राइटेरिया है, इकोनॉमिकल कंक्रीट बनाना है। तो सीमेंट हमको ऑप्टिमम यूज करना है, कम से कम यूज करना है, ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसके लिए। तो हमें, और यही प्रोसीजर जो है अभी मैंने आपको प्रोसीजर क्या बोलते हैं, आपको जो स्टेप नंबर 3 से लेके स्टेप मैं आपको अगले बार समझा देता हूँ, स्टेप नंबर 3 से लेके यही वाटर सीमेंट रेशियो रखते हुए सिर्फ सीमेंट घटाना है। थोड़ा सीमेंट 5% कम करना है, 10% कम करना है, थोड़ा सीमेंट बढ़ाना भी है एक ट्रायल के लिए। और करस्पॉन्डिंग टू दिस यू हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स, दैट इज दी वाटर। वाटर तो आपका फाइनलाइज ही है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स्ड है, वही वाटर हमने रखना है। सिर्फ सीमेंट हमारा कम होगा या बढ़ेगा 5 किलो 10 किलो से पर क्यूबिक मीटर। और बाकी फिर इस हिसाब से जो स्टेप नंबर 4-5 के लिए हमने एग्रीगेट वर्कआउट किए थे वही रिपीट करना है। फिर से हमें 9 क्यूब और 1 स्लम कोन, इसके लिए क्वांटिटी निकालना है। और उस हिसाब से फिर से उसको हम ट्रायल नंबर 3 बोलेंगे, ट्रायल नंबर 4 बोलेंगे, या ट्रायल, जितने ज्यादा ट्रायल करेंगे उतना ज्यादा हमारे एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। फिर उसके लिए हम 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज के लिए क्यूब कास्ट करेंगे। और 28 दिन के बाद में ये ट्रायल नंबर 1, 2, 3, 4 इसके क्यूब की स्ट्रेंथ हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास में अब फाइनली डाटा क्या है, फाइनल डाटा हमारे पास में है कि क्यूब स्ट्रेंथ है फॉर द वेरियस वाटर सीमेंट रेशियो, बिकॉज वी हैव केप्ट द वाटर कांस्टेंट बट वी हैव वेरिड द सीमेंट। So we have a data of the concrete cubes of compressive strength corresponding to the various water cement ratio, say for the 3 trials, 4 trials or 5 trials, ठीक है। तो फाइनली हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कि दैट ऑन दैट ग्राफ on x axis water cement ratio will be there, on y axis the strength will be there, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। और जो हमारे स्टेप नंबर 2 में हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ किया था, वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना है वो हम निकालेंगे। वो हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। फिर करस्पॉन्डिंग टू दैट वाटर सीमेंट रेशियो, कीपिंग द वाटर कांस्टेंट, we can find out the cement, coarse aggregate, fine aggregate and the admixture. That is the final concrete mix design result. Okay? तो मुझे लगता है कि आपके थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं और इसका जो प्रोसेस है एक हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको बोलता हूं, अभी तो यहां हम रुकते हैं, वी विल बी टेकिंग द ब्रेक हियर। आई एम वेरी हैप्पी that out of